ओम गुरुवे नमः। आज उत्तम दिन है, निर्जला एकादशी का भी उत्तम दिन है और साथ साथ में महामहेश्वर अभिनवगुप्त महाराज की जयंती का भी दिन आज है। तो आज के महत्वपूर्ण दिन में मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी अभिनवगुप्त के बारे में कुछ लफ्ज़ पढ़ेंगे, कुछ उनके जीवन के बारे में खुद भी पढ़ेंगे और लोगों को भी सुनाएंगे। मैं कुछ एक पैसेज पढ़ रहा हूँ अपनी किताब तत्वज्ञान एंड बैरो वर्शिप द ट्रेजर ऑफ कश्मीर। उसका ये फ्रंट पेज है, आप देख रहे हैं। ये गंगबल ऊपर है, हरमशिव टोपोग्राफी का रिप्रेजेंट करता है, हरमोगंगा, और नीचे ये शंकराचार्य है। दाएं साइड में बाएं साइड में चक्रेश्वर श्रीयंत्र की स्थापना है कश्मीर में, और नीचे पूर्णराज भैरव का ये मंदिर है। तो ये प्रमुख भैरव है जो देवी का जल अभिषेक करता रहता है। अब हम ये मैं पैसेज पढ़ूंगा यहाँ से। A brief glimpse of Mahameshwar Abhinavgupta's life. Abhinavgupta was born in Kashmir. मैं उस किताब से कोट कर रहा हूँ। Abhinavgupta was born in Kashmir in 1950 in a family of scholars and mystics. He studied all the schools of philosophy and art of his time under the guidance of 15 teachers or gurus. In his long life, he completed over 35 works, the largest and most famous of which is Tantraloka, which is in fact an encyclopedia treatise on all the philosophical and practical aspects of Trika and Kaula systems, which is known today as Kashmir Shaivism. Another important contribution of Abhinavgupta is in the field of aesthetics and music. When he wrote his commentary of Nati Shastri or Bharat Muni in the form of famous book Abhinav Bharati, his literature represents the finest reflection of Indian religio-philosophical thought. One of the many existing works of Abhinavgupta are Paramarsar, means essence of supreme truth. The 105 verses of composite text lays out the Shaivic vision of the universe as unfolding of unitary consciousness called Paramashiva, Param Samvat. Paramashiva or Param Samvat, second is Chaitanya और चित शक्ति और अनुतरा। ये परम शिव जो स्टेज है, इसको परासम्मत भी कहते हैं, अनुतरा भी बोलते हैं, चित शक्ति भी बोलते हैं। द सुप्रीम प्रिंसिपल assumes the form of 36 evolutes or tattvas. In this way projects the universe of diverse objects upon its own screen. Abhinavgupta had multidimensional personality. He was a mystic, philosopher, a musician, poet, dramatist, theologian, and a logician, all in one. His works need more research, and paradoxically, common Kashmiri Pandits have very little knowledge about him. His strong influence on Indian culture is fast spreading, and his appeal in the Western world is gaining ground. अब हम इसमें ज़्यादा अब और डीप नहीं जाएंगे। तो अब ये अभिनवगुप्त सेक्रेड बर्थ, ये बड़ा मिस्टिकल बर्थ है इनका। इन द फाइनल चैप्टर्स ऑफ हिज तंत्र लोक, Abhinavgupta
narrates the special circumstances of his birth. His birth was not accidental, unplanned, and his conception in the womb was not because of sex lust, as is generally the case with all of us. Desiring to perform a siddhi or perfected being, rather desiring to parent a siddha or a perfected being, the parents of Abhinav Narasimha and Vimala performed an esoteric tantric ritual. So Abhinav Gupta के जो पिताजी का नाम था वो नाम था नरसिंहगुप्त और माता का नाम था विमला। उन्होंने समूह की क्रिया की, तांत्रिक क्रिया की। जैसे आम लोग वो शादी में बिना किसी तैयारी के, बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के, इच्छा के बगैर बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन इनका जो अलग ही तरीका था। उन्होंने इस बच्चों को पैदा करने से पहले एक योग साधना की और साधना करके एक तांत्रिक क्रिया की। तो तांत्रिक क्रिया में तो ये पैदा हुए। तो अभिनव गुप्त को इसलिए योगिनी भू कहा जाता है। वो उनकी माँ का नाम था सिद्धा योगिनी और उनकी पेरेंट्स तो सिद्ध योगी थे और माँ थी सिद्ध योगिनी। तो उसकी जो माँ का जो देहांत हो गया, उनके जन्म के 2 साल के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। तो अभिनव गुप्त ने कौलगुरु के पास भी गए, शंभुनाथ उनका नाम था। तो उसके बाद में उन्होंने उनको शक्तिपात किया। तो वो जो पहला प्रथम गुरु उनका था कौल सेक्ट का, वो शंभुनाथ नाम था। उनको उन्होंने तो शक्तिपात किया उन पर और मुक्ति का मार्ग उनका खुल गया। तो दूसरे थे लक्ष्मण गुप्त, दूसरा गुरु था इनका। उन्होंने उसको प्रतिविज्ञान थियरी ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन, अपने आप को जानो, टू लुक बैक टू योर सोर्स। आपका प्राइमल सोर्स क्या है? आपका प्राइमल सोर्स जो आत्मन है, जो परमात्मा का अंश है, तो उसको जानने की कोशिश को बोलते हैं प्रतिविज्ञान। तो द थियरी ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन, लुक बैक टू योर सोर्स। तो वो प्रतिविज्ञान का जो ज्ञान दिया उन्होंने लक्ष्मण गुप्त ने अभिनव गुप्त को इंट्रोड्यूस किया इस मार्ग में। तो और उसके बाद में उसने लिखी थी ईश्वर प्रतिविज्ञान विवृति विमर्शनी। तो उन्होंने दूसरा भी है पराक्रमश का विवरण, एक किताब। तो उसमें उन्होंने अत्रि गुप्त का नाम दिया है, जो एक राजा था। उसको ललिता द्वितीय मुक्ति पीठ ने यहाँ कश्मीर बुलाया था। और कब बुलाया था? 725-761 में। तो उसकी अभिनव गुप्त की डायनास्टी वहाँ से शुरू हो गई। ललिता दत्त मुक्ता पीठ ने अत्रि गुप्त को यहाँ इनवाइट किया 725 और 761 में, और वो सेटल हो गए कश्मीर। तो अभिनव गुप्त का जो जन्म है वो 950 और 1050 AD के बीच में माना जाता है। तो वो एक सूत्र में बोलते हैं, इन वन ऑफ हिज सूत्रास विच इज कॉल्ड भैरवस्तव जो बोलते हैं व्याप्त चराचर भाव विशेषम, हम पढ़ते हैं ना। तो जो ये भैरव स्तुति उसने लिखी थी, वो कहते हैं आनंदेश्वर भैरव मैसूर में लिखी थी। और तो वो कहते हैं वो तपोस्थली थी। आनंदेश्वर भैरव जो सबसे श्रेष्ठ भैरव माना जाता है, वो अभिनव गुप्त
कि वो तपोभूमि थी, तो वहाँ भी उसने ये लिखा है बैरस्तु। तो उसमें ये जो बड़ा मशहूर है, उसमें वो लिखता है कि he says in that book, in that Tao, that on the day of 10th dark fortnight in the month of Posh, in the year Vasu 8, Rasi 6, in Sanskrit the digits are read from the left, hence it comes to 68. So as per the traditional knowledge prevalent in Kashmir to this day, Abhinavgupta entered a cave in Birwa while reciting the Bhairastati along with 1200 disciples and was never seen again. Whether he dematerialized himself or left his mortal frame in the Birwa cave, some 5 miles from Magam village on the Gulmarg range, is not known. 1200 अपने शिष्य लेकर महामहेश्वर अभिनवगुप्त महाराज बीरवा गुफा में चले गए अंदर, और उससे पहले उन्होंने यही स्तुति वहाँ पढ़ी थी। तो कहा जाता है कि वो उसने अपने आप को डिमेटेरियलाइज किया 12 शिशु के समेत, या वो इसी देह से दूसरे डायमेंशन में चला गया। तो ग्रेट योगी जितना इतना पावर था कि 1200 डिसाइपल उसको एट अ टाइम समझे डिमेटेरियलाइज कर रहे हैं या डायमेंशन चेंज करना भी कोई ऑर्डिनरी शक्ति नहीं है। तो ही वॉज अ ग्रेट योगी। तो अब ये जाते जाते मैं उनका एक ये पढ़ूंगा। उन्होंने ये अभिनवगुप्त ने एक और ये लिखा है, ये दुर्गा सप्तशती के एंड में लिखा है, ये उन्होंने लिखा है, तव चिका किलन सुतित्र अम्ब के सकल शब्दमयी किलते तनु निखल मूर्तिश में बहुदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचन्ति शिवे शिमिता शिवे जगति जातमयत् नवशादिदं सुतिर्जपार्चिन चिन तन्वर्जिता न खोलु काचिन काल कलास्तिमे। जब उनकी वो शिवोहम अवस्था उनको आ गई थी, फाइनल रियलाइजेशन, तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये दुनिया के नाम रूप संसार को इंसान देखता है, ये नाम रूप जो चित्र हम देख रहे हैं संसार के, तो ये सभी शिव की चेतना में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये चेतना जो शिव की है, ये उसी चेतना जो है मिरर जैसा है, उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो दुनिया नाम रूप संसार है। ये कॉस्मॉस है तो नाम रूप ही है, नाम इसका है और रूप है। ये नाम रूप संसार और इसकी जो पदार्थ है, सब चीज़ें, ये उस परम शिव की कॉन्शियसनेस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये उनकी अवस्था हो गई, तो वो शिवमय हो गए थे। उनको हर चीज़ में शिव दिखता था, हर एक कंकर में शंकर दिखता था, और अपने आप वो शिवोहम अवस्था उनको प्रकट हो गई थी। अब जो हमने शुरू पढ़ा, ये इसका माने क्या है? हे जगदम्ब के, संसार में कौन सा वानमय ऐसा है? भगवती वानमय रूप है, शब्दमय रूप है, मातृका उसको बोलती। वो माता ने वायखरी रूप धारण किया है। हे जगदम्ब के, संसार में कौन सा वानमय ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है? जो भी हम बोलते हैं, घर का कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, या आप स्तुति पढ़ते हैं, तो ये सभी देवी की स्तुति है, शिव की स्तुति है, ये स्तोत्र है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकल शब्दमयी है।
वानमयी है, सर्वशक्तिमयी है, सर्वाक्षरमयी है भगवती। हे देवी, अब मेरे मन में संकल्प विकल्पात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृतियों में आपका स्वरूप का दर्शन होने लगा है। तो उनको अब लगा है कि सब चीज़ों में भगवती है, ये जो शिव की शक्ति है, और ये चीज़ें शिव, जो नाम रूप संसार है, सब चीज़ें शिव चेतना में ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जैसे एक शीशे के सामने चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, और जो चीज़ उसके सामने आती शीशे के सामने, उस शीशे को कोई असर नहीं पड़ता। शीशा तो ऐसी ही है, वैसी है। तो ये चेतना का सूर्य है परम शिव, चेतना के सूर्य है। उसको अनुत्तरा भी बोलते हैं, परम शिव भी बोलते हैं, परासंवत भी बोलते हैं। तो शब्द प्रकाशमयी है, शब्द विमर्शमयी है, और शून्य में रहते हैं। हे समस्त अमंगल ध्वंसकारिणी, अमंगल को दुष्ट करती है माता, कल्याण स्वरूपी शिवे, इस बात को सोचकर अब बिना किसी प्रत्येक प्रयत्न के ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी ये स्थिति हो गई है कि मेरे समय का रुतम अंश भी तुम्हारी स्तुति है। जप पूजा अथवा ज्ञान से रहित नहीं है। 24 घंटे में मैं शिवमयी हूँ। मैं जो बात करता हूँ तेरी वो स्तुति है। मैं पूरा शिवमयी हो गया हूँ, और जो पदार्थ हैं दुनिया की, जो चीज़ है, वो ही शिवमयी हैं। और जो मैं स्तोत्र बोलता हूँ या बातें करता हूँ, वो तेरा ही स्वरूप है। तो दिस इज कॉल्ड फुल गॉड रियलाइजेशन। 24 घंटे उसको बोलते हैं नित्य उदित समाधि में। तो अभिनव गुप्त पहुँच गए थे नित्य उदित समाधि में। 3 समाधियाँ होती है, समीप समाधि, सभी कल्पा समाधि। सभी कल्पा में आपको सूर्य संकल्प रहता है, भगवान का ध्यान रहता है। सभी कल्प समाधि। निर्विकल्प में कोई आपका संकल्प नहीं आता है रहता है, और आप अपने आत्मदीप से एक हो जाते हैं, वो हो गए निर्विकल्प। उसमें कोई संकल्प या कोई पदार्थ, कोई चीज़ नहीं रहता है, कोई चित्र नहीं रहता। खाली आप निराकार रूप में आप जाते हो। यू आर विटनेसिंग योर ओन फॉर्मलेस सेल्फ। तो यही निर्विकल्प समाधि है, इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं। तो निर्विकल्प। दूसरे सभी कल्प में आपको भगवान का ध्यान रहता है, जिसकी आप चिंतन करते हो, जिसका आप ध्यान करते हो, वो सामने आए। चाहे राधा है या कृष्ण है या शिव है, वो आपके सामने है। वो हो गया सविकल्प समाधि। तो तीसरा समाधि है नित्य उदित समाधि। जैसे अभिनव गुप्त लिखता है, ये लगता है कि ये नित्य उदित समाधि में थे, और उसी अवस्था का ये वर्णन करते हैं अभिनव गुप्त महाराज। आप इसकी हाइट देखिए, इसी हाइट ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, और इसकी कमाल की अवस्था क्या थी। संपूर्ण शुभमय हो गए थे, और अर्थात मेरे संपूर्ण जागृतिक आचार व्यवहार तुम्हारा ही भिन्न भिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवहित होने के कारण तुम्हारी पूजा के रूप में ही परिणित हो गए हैं। ये महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त ने ये श्लोक लिखा है। तो ये उनकी एक्सटेसी बोलता है। उनकी एक्सटेसी क्या है? तो ये जो श्लोक पढ़ेगी, ये दुर्गा सप्तशती में लिखा है, मैंने उधर से पढ़ा है। तो अभी ये आप देखिए, इनकी जो स्टेट है, इनका जो अवस्था है, पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे अभिनव गुप्त महाराज। अच्छा, एक और मुझे याद आया, ये श्लोक मैं आपको वो भी सुनाऊं। आत्मा त्वां गिरिजामती सहचिरा प्राणा शरीरम गृहं पूजाते विश्वोऽपि भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तुताने सर्वा गिरो
यत् यत् करम करोमि तत्तत् शंभो तव आराधना। आदि शंकराचार्य ने श्लोक लिखा। आत्मा ताम गिरिजामती, हे भगवान शिव, मेरी आत्मा जो है वो आपका ही रूप है। आप मेरे अंदर रहते हैं, आप इस शरीर के शिवालय में रहते हैं। आत्मा ताम गिरिजामती, जो गिरजा है वो मेरी बुद्धि है। आत्मा तम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, जो 5 आपके गण है, ये आपको सहचर है, ये मेरे 5 प्राण हैं। आत्मा तम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विश्वोपभोग रचना। मैं जो पूजा करता हूँ, मैं पूजाते विश्वोपभोग रचना। मेरी पूजा क्या है? मैं टीवी चित्र देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, अच्छे अच्छे चीज़ देखता हूँ, अच्छे अच्छे पदार्थ देखता हूँ। मैं उन्हीं पदार्थों से आपकी पूजा करता हूँ, क्योंकि आप अंदर बैठते हो। मैं अच्छे अच्छे चित्रों से मेरा मन प्रसन्न होता है। मैं आपको उन्हीं चित्रों से पूजा करता हूँ। तो और जो मैं दुनिया में कार्य करता हूँ, बाज़ार जाता हूँ, काम करता हूँ, वो आपका प्रदीक्षण है। वो आपका प्रदीक्षण है, क्यों? आप ये शरीर शिवालय है, आप अंदर बैठे हैं। तो जो मैं कार्य करता हूँ, दुनिया का व्यवहार करता हूँ, तो चीज़ें लाता हूँ, बाज़ार जाता हूँ, किसी से बात करता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, यही मेरी स्तुति है। तो मेरी स्तुति को अलग नहीं है, अलग पूजा रूप में बैठूँ, पाठ करूँ, अलग अलग सबको छोड़ के। छोड़ो क्या, वो सर्वव्यापक है भगवान। तो यही जो मैं काम करता हूँ, जो मैं बातें करता हूँ, वही मेरे सूत्र है। तो ये रियलाइजेशन जो शंकराचार्य की, वही अभिनवगुप्त की भी है। तो वो निरंतर उसी शिवमय उनका अवस्था होती है। वो शिवमय स्वरूप में वो व्यस्त होते हैं। वो चारों पासे शिव को ही देखते हैं। राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, लक्ष्मी नारायण की, गौरी शंकर महादेव की जय, और भगवान गोपीनाथ महाराज की जय। जाते जाते मैं आपको ये प्रद्युमन पीठ, चक्रेश्वरी देवी आंगन, हरि पर्वत श्रीनगर, सराउंडिंग अष्टभैरव, ये चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको। टाइम इतना नहीं है। बीच में ये अपने चक्रेश्वरी माता है, जो शक्ति की भी बात कर रहे थे, और ऊपर है आपके ये हरमुख गंगा, हरमुख पीक, और ये अष्टभैरव उनके चरणों में है। उनके इर्द गिर्द 8 भैरव है। ये मैंने किताब में ये लिखा था। ये उस किताब का एक पार्ट है, ये जो मैंने किताब कोट की है, जिसमें मैं पढ़ रहा था। ये किताब अभी पब्लिश पूरी नहीं हुई है, तो इसी में ये एक चैप्टर था। मैंने कहा ये मैं बात करते हैं, इसमें मैं अभिनवगुप्त के बारे में लिखा था। मैंने कहा आपसे भी शेयर करते हैं। आज उत्तम दिन है। मेरी इच्छा है कि आपको ये महामेश्वर अभिनवगुप्त महाराज आप सब भक्तों को कल्याण करे, और हमारा भी कल्याण करे, और हमारा कल्याण करिए। हम ये भक्ति से उनका नाम लेते हैं, ताकि उनकी अवस्था हमको भी ट्रांसमिट हो जाए। उनकी जो एनर्जी है, उनका जो शक्ति है, वो हमको भी हम में भी प्रवेश करे, और इस जगत का कल्याण हो। इसलिए हमने अभिनवगुप्त का नाम आप सभी भक्त आज ले रहे हैं। बोल अभिनवगुप्त महाराज की जय। बोल शिवाचार्य स्वामी राम जी की जय। बोल ईश्वर स्वरूप लक्ष्मण जी महाराज की जय। बोल भगवान गोपीनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।